اسی طرح عفران خنجر کو شازیہ کے بارے میں اور اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح شازیہ اس سے ملی اور کس طرح شازیہ کو وہ لوگ اٹھا کر لے گئے اور کس طرح انم اور اس کی ملاقات ہوئی۔ یہ سب سن کر خنجر زور زور سے ہنسنے لگا۔ یہ دیکھ کر عفران بڑی حیرت سے خنجر سے کہنے لگا، ارے خنجر بھائی صاحب، آپ اتنا ہنس کیوں رہے ہو؟ یہ کوئی ہنسنے کی بات ہے؟ یہ سن کر خنجر اور بھی زیادہ ہنسنے لگا۔ یہ دیکھ کر انم بھی زور زور سے ہنسنے لگی۔ یہ دیکھ کر عفران انم اور خنجر سے کہتا ہے، تم دونوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنا ہنس کیوں رہے ہو؟ میں نے تم دونوں کو کوئی چٹکلا نہیں سنایا ہے جسے سن کر تم دونوں ہنس رہے ہو۔ یہ سن کر انم اور خنجر اور بھی زیادہ ہنسنے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر عفران کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ انم سے کہتا ہے، انم ہنسنا بند کرو، مجھے تم پر بہت غصہ آ رہا ہے۔ یہ سن کر انم عفران سے ہنستے ہوئے کہتی ہے، پر عفران تمہیں غصہ کیوں آ رہا ہے؟ اچھا تو تمہیں میرا ہنسنا بھی نہیں پسند؟ اگر عفران تمہیں میرے بارے میں سب کچھ سچ معلوم ہو جائے تب تم میرا کیا کرو گے؟ یہ سن کر عفران انم کو بڑی حیرت سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، انم تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ سن کر انم عفران سے ہنستے ہوئے کہتی ہے، عفران میں تمہیں کچھ کہنا نہیں چاہتی، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر انم اپنے چہرے سے چہرہ نکالتی ہے، جسے دیکھ کر عفران حیرت میں پڑ جاتا ہے اور حیرت سے کہتا ہے، شازیہ تم؟ یہ سن کر انم جو شازیہ بنی ہوئی تھی وہ زور زور سے ہنسنے لگتی ہے۔ یہ دیکھ کر عفران کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ انم کو غصے میں کہتا ہے، انم تم نے مجھے جھوٹ کہا اور تم نے چہرے پر چہرہ لگا کر تم نے مجھے یہ بتانے کی کوشش کی کہ تمہارا بھائی تمہاری شادی زبردستی کسی اور سے کرا رہا ہے جو اچھا انسان نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں نے تمہارا ساتھ دیا، پر انم تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ انم میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا اچھا دوست مانا ہے اور شازیہ کے جانے کے بعد میں شازیہ کے لیے کتنا پریشان تھا یہ تو تم جانتی ہی ہو، پھر بھی تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ اب کوئی انسان کسی انسان پر بھروسہ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ تم جیسے لوگ بھروسہ ہی توڑ دیتے ہیں۔ میری ہی غلطی تھی کہ میں نے آنکھ بند کر کے تم پر بھروسہ کیا۔ یہ سن کر انم عفران سے کہتی ہے، بس کرو عفران، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، یہ میری مجبوری تھی، کیونکہ تمہارے ابو جان نے میرے سارے پریوار کو جان سے ختم کر دیا۔ یہ سن کر عفران انم سے غصے میں کہتا ہے، انم یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اور تم میرے ابو جان کو کیسے جانتی ہو؟ اور تم نے یہ کیسے کہا کہ میرے ابو جان ایک برے انسان ہے جس نے تمہارے سارے پریوار کو جان سے ختم کر دیا ہے؟ یہ سن کر انم عفران سے کہتی ہے، عفران میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، یہ سچ ہے کہ تمہارے ابو جان نے میرے سارے پریوار کو جان سے ختم کر دیا ہے۔ وہ تو قسمت سے میں بچ گئی تھی، ورنہ آج میں بھی زندہ نہیں ہوتی۔ یہ سن کر عفران غصے میں انم سے کہتا ہے، انم میں تمہاری باتوں کا یقین کیسے کروں؟ جب تم نے مجھ سے اتنا سب کچھ جھوٹ کہا ہے، پھر یہ تو بھی تمہارا جھوٹ ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر انم عفران سے کہتی ہے، عفران اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے تو تم اس خنجر سے پوچھ سکتے ہو کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ یہ سن کر عفران خنجر سے کہتا ہے، اچھا تو خنجر بھی تمہارے ساتھ ملا ہوا ہے، اس خنجر کو تو میں جان سے مار ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر عفران جیسے خنجر کے پاس جاتا ہے، یہ دیکھ کر انم غصے میں عفران سے کہتی ہے، عفران میری بات سنو، یہ خنجر اچھا انسان ہے، یہ تو میرا دوست ہے جس نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے، کیونکہ اس سے تمہارے ابو جان کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ یہ سن کر عفران غصے میں خنجر سے کہتا ہے، خنجر تم بتاؤ کہ یہ انم کیا کہنا چاہتی ہے اور میرے ابو جان کا ان سے کیا لینا دینا؟
ये सुनकर खंजर इफरान से कहता है, इफरान, तुम्हारे अब्बू जान और अनम के अब्बू जान दोस्त थे। अनम के अब्बू जान काफ़ी ज़्यादा रईस थे, जिसकी वजह से लोग इन्हें सलाम करते थे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे और नेक इंसान थे, लोगों की मदद भी करते थे। और दूसरी तरफ तुम्हारे अब्बू जान बहुत ही गरीब थे और लोगों से कोई हमदर्दी नहीं थी, जिसकी वजह से लोग इन्हें पसंद नहीं करते थे। और ये सब तुम्हारे अब्बू जान को बर्दाश्त नहीं हुआ। इन्हें ये लगता था कि वो गरीब है, जिसकी वजह से लोग इनकी इज्जत नहीं करते, जिसकी वजह से इनमें अमीर बनने का भूत सवार हुआ। पर कितनी भी मेहनत करने के बाद तुम्हारे अब्बू जान अमीर ना बन सके। ये सब देखकर तुम्हारे अब्बू जान ने दिल में ये ठान लिया कि वो कैसे भी करके एक अमीर इंसान बनेंगे। और अमीर बनने के जोश में तुम्हारे अब्बू जान एक खूनी बन गए। ये सुनकर इफरान खंजर को बड़ी हैरत से देखता है। ये देखकर खंजर इफरान से कहता है, हाँ इफरान, तुम्हारे अब्बू जान एक खूनी हैं। सुनकर इफरान को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि वो अपने अब्बू जान को एक नेक इंसान समझता था। पर उसे क्या मालूम था कि उसके अब्बू जान ने कितनों की जान लेकर इनकी ज़िंदगी को ऐशो आराम में बदल दिया। ये सब सोच सोच कर इफरान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अनम से रोते हुए कहता है, अनम मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे अब्बू जान एक कातिल है। अच्छा हुआ तुमने मेरे अब्बू जान के बारे में मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। इफरान इतना कहता ही है कि इफरान के अब्बू जान वहाँ पर मौजूद हो जाते हैं कि इतने में इफरान, खंजर और अनम की नज़र इफरान के अब्बू जान पर पड़ती है। ये देखकर इफरान रोते हुए अपने अब्बू जान से कहता है, अब्बू जान आपने क्या किया? सुनकर इफरान के अब्बू जान इफरान से कहते हैं, इफरान, मैंने ये गलती 10 साल पहले की थी और आज मुझे इस गलती का एहसास है। और अनम जो भी सज़ा देगी मुझे सज़ा मंजूर है, क्योंकि मैं इनका सारे परिवार का कातिल हूँ, जिसकी वजह से मेरा जीने का कोई हक नहीं। ये सुनकर इफरान रोते हुए अनम से कहता है, अनम तुम मेरे अब्बू जान को माफ़ कर दो। देखो अनम, इनको इनकी गलती का एहसास है। मुझे मालूम है कि इन्हें माफ़ करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। अनम, तुमने अगर मेरे अब्बू जान की जान ले ली तो क्या तुम्हारे घर वाले वापस आ जाएंगे? नहीं ना? तो अनम मेरे अब्बू जान को माफ़ कर दो, क्योंकि मेरे अब्बू जान को इनकी गलती का एहसास है। और अनम, अगर तुमको किसी को जान से मारना ही है तो तुम मुझे जान से मार लो। कर अनम इफरान से कहती है, इफरान, मैं तुम्हें कभी नहीं मार सकती, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। और रही तुम्हारे अब्बू जान की बात, तो इन्हें माफ़ करना इतना आसान नहीं, क्योंकि मैंने अपना बचपन कैसे कैसे गुजारा है ये मुझे ही मालूम है। पर इफरान, ये तुम्हारे अब्बू जान हैं, जिसकी वजह से मैंने इन्हें माफ़ कर दिया। ये सुनकर इफरान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अनम से कहता है, अनम तुम कितनी अच्छी हो, तुमने मेरे अब्बू जान को माफ़ कर दिया। और इसी तरह अनम और इफरान एक दूसरे से गले लगते हैं। ये देखकर इफरान के अब्बू जान इफरान और अनम के पास जाते हैं। देखकर खंजर वहाँ से चले जाता है और इफरान के अब्बू जान अनम के पास जाते हैं और मुस्कुराते हुए अनम से कहते हैं, अनम बेटे, तुम तो मेरे घर की बहू बनने वाली हो, तो इसी खुशी में तुम मुझसे गले नहीं लगोगी? ये सुनकर अनम मुस्कुराते हुए इफरान के अब्बू जान से गले लग जाती है। और इसी तरह इफरान के अब्बू जान मुस्कुराते हुए अनम के कान में धीमे से कहते हैं, अनम तुम कुछ ही पल की मेहमान हो, अब तो तुम्हारी जान को जाने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर तुमने मेरे बेटे इफरान से कुछ कहने की कोशिश की तो मैं इफरान को भी जान से मार दूंगा। ये सुनकर अनम बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो चुपचाप इफरान के अब्बू जान की वो सारी बातें सुनती है। इफरान को इस बारे में कोई खबर नहीं होती, क्योंकि इफरान के अब्बू जान मुस्कुराते हुए अनम से बात कर रहे थे, जिसकी वजह से इफरान को ये लगता है कि उसके अब्बू जान
से बेटी की तरह बातें कर रहे हैं कि इतने में इफरान के अब्बू जान अनम के पेट पर छुरी घोंप देते हैं, जिसकी वजह से अनम ज़मीन पर गिर जाती है। ये देखकर इफरान बहुत ज़्यादा रोने लगता है और अपने अब्बू जान को गुस्से में कहता है, अब्बू जान, ये आपने क्या किया? ये सुनकर इफरान के अब्बू जान मुस्कुराते हुए इफरान से कहते हैं, इफरान, ये मेरी दुश्मन की बेटी है जो मेरी बहू बनना चाहती है, इस वजह से मैंने इसे मार दिया। ये सुनकर इफरान गुस्से में अपने अब्बू जान से कहता है, अब्बू जान, आपको तो अब्बू जान कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। ये सुनकर अनम इफरान से कहती है, इफरान, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये सुनकर इफरान अनम से कहता है, क्या कहना चाहती हो? ये सुनकर अनम इफरान से रोते हुए कहती है, इफरान, तुम्हारे अब्बू जान ने मेरे साथ धोखा किया। मैंने तुम्हारे कहने पर तुम्हारे अब्बू जान को माफ़ भी कर दिया था, पर मुझे क्या मालूम था कि इनका दिल पत्थर का है। उनकी तरफ ऐसे नज़रों से देखती है जैसे वो इफरान से ये कहना चाहती है कि वो कैसे भी करके अपने अब्बू जान को ख़त्म कर दे। ये सब देखकर इफरान के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आंखों में आंसू लिए अनम के पेट से छुरी निकालता है और अपने अब्बू के पेट में से घोंप देता है, जिसे देखकर अनम जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए इफरान के अब्बू जान से कहती है, क्या हुआ? अब ये तुम्हारा बेटा अब तुम्हारा नहीं है, क्योंकि तुम उसके बाप होने के लायक नहीं। अनम इतना कहती ही है कि इफरान के अब्बू जान को अपने बेटे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने पेट से छुरी को निकालकर इफरान के पेट में छुरी को घोंप देता है, जिसकी वजह से इफरान भी उन लोगों की तरह घायल हो जाता है। ये देखकर अनम और भी ज़्यादा रोने लगती है। ये देखकर इफरान के अब्बू जान ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए अनम से कहते हैं, अनम, अब तुम रो क्यों नहीं रही हो? अभी तो तुम्हें बड़ी हंसी आ रही थी। ये देखकर अनम गुस्से में इफरान के अब्बू जान से कहती है, कैसे बाप हो जो तुमने अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा? ये सुनकर इफरान के अब्बू जान गुस्से में अनम से कहते हैं, जब बेटा बाप को मार सकता है तो बाप भी बेटे को मार सकता है। और इसी तरह इफरान, अनम और इफरान के अब्बू जान तड़प तड़प कर मर जाते हैं, क्योंकि इन्हें बचाने वाला कोई नहीं होता। और इसी तरह इनकी कहानी खत्म हो जाती है।